السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو عجیب و غریب ویڈیو ہے۔ ایک دجالی فتنہ جو اپنے آپ کو آخری پیغمبر بول رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دجالی فتنہ کیا بولتا ہے۔ اور دوستو، اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بہترین سا بیان ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے حق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرا نام ہے محمد اسرائیل۔ میں رہنے والا ضلع سیتاپور کا ہوں۔ اور میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے حق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت بندگی کے لائق نہیں ہے۔ نہیں، کلمہ ہے مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ آپ کی کیا سچ ہے؟ جو میں نے کہہ دیا آپ کو۔ نہیں، ہم مسلمان اللہ کے نبی کی امت میں ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں حق کہہ رہا ہوں۔ میں تو سامنے کتنی بار گئے چکا ہوں، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ مسلمان نہیں ہیں آپ؟ ہوں، محمد اسرائیل نام ہے، مسلمان ہوں۔ کس کی امت میں ہیں آپ؟ اس ٹائم تو سب میری امت میں۔ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ذرا میں سیریس کہہ رہا ہوں، غلط کر رہے ہیں آپ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چاہے آپ میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کا، میرے پاس وہی آتی ہے اور میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کون لے کر کے آتا ہے آپ کے جبریل پاس؟ علیہ السلام آتے ہیں میرے پاس۔ کیسے دکھتے ہیں جبریل علیہ السلام؟ جبریل کبھی تو کتابوں کے ذریعے وہی آتی ہے، کتاب بھیجتے ہیں اللہ آپ سے؟ کبھی کتابوں کے ذریعے جیسے وہی آتی ہے، کبھی انسان کے شکل میں وہی آتی ہے میرے پاس۔ کیا بولتے ہیں؟ بس کہ لوگوں دعوت دو۔ کیا دعوت دو؟ پہلے تو یہی دعوت تھی، نہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، عزت کا ذلت کا دینے والا اللہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ جو میری باتوں کا کچھ جواب دیں آپ تو مجھے پھنساؤ گے۔ نہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو پہلے۔ سنائیے، آپ سنائیے۔ چلو میرے آپ سنا دے جو سنانا، میرے چند سوالوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ سنو، سنائیے۔ میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، جو وہی آئے گی وہی کروں گا۔ آج تک میں جو کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور مجھے اس دنیا میں آگے بھی میں وہی کروں گا۔ جو میرے پاس وہی آئے گی میں آگے لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ کیا حکم ہے ابھی تک اللہ کا؟ ابھی تو بس یہی ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے، سب کو، کیا بتانا؟ اس دنیا میں جتنی یہ شکل ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں۔ اور کچھ بتاؤ، پھر میں آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ اور اب جب بھی میں دیکھو ابھی تک اللہ جو مجھ سے کہتے ہیں یہ بس یہی ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے بندے اللہ کی طرف بلانا ہے، کیوں سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جتنی بھی اللہ کی، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف
रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पैगाम दोहराते हैं सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने भेजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के, ताकि वो लोगों को खबरदार कर सके और लोगों को बशारत दे सके। लेकिन फिर भी अक्सर इंसान ये नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने आखिरी पैगंबर बना के भेजा है सारे आलम के लिए, लेकिन फिर भी अक्सर इंसानियत इस बात को नहीं जानती। हम मुसलमान, क्योंकि हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, इसीलिए हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। लेकिन गैर मुसलमान जो ये बात नहीं मानते कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर थे। लेकिन अगर कोई भी इंसान, कोई भी गैर मुसलमान अगर खुले जहन से कुरान मजीद को पढ़ेगा या कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसे यकीन हो जाएगा कि ये कलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। और मैंने एक तकरीर दी थी इसी ग्राउंड में, इसी स्टेज पे, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, अंग्रेजी में तकरीर थी, क्या कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर कोई भी गैर मुसलमान अगर इस तकरीर को सुनेगा खुले जहन से, इंशाअल्लाह इस तकरीर में मैंने साबित किया हूँ रीज़न, लॉजिक और साइंस के साथ, मंतिक और साइंस के साथ, कि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। तो कोई भी गैर मुस्लिम अगर ये तकरीर को सुनेगा खुले जहन से, इंशाअल्लाह उसको इस किताब पे यकीन करना होगा कि ये किताब अल्लाह का कलाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। ये कुरान मजीद की आयत सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 की, मेरे नज़दीक ये दावती मैदान में मैं इसे कहता हूँ मास्टर की। मास्टर की यानी सारे तालों को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो आज इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ मजहबी किताबों का हवाला देते हुए गैर मुसलमानों को यह साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, लेकिन गैर मुसलमानों के लिए भी आखिरी पैगंबर है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट, जो ज़रूरी अहम हवाले वो दूंगा, वरना तकरीर बहुत लंबी हो जाएंगी। सबसे पहले हम तहकीक करेंगे हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है। हिंदू मजहबी किताबें दो किस्मों में बांटी गई है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति की माने रिवील्ड, अंडरस्टैंड, परसीव। श्रुति की मानी है वही, समझना। हिंदू विद्वान कहते हैं कि श्रुति खुदा का कलाम है, ईश्वर का कलाम है। और दो किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। दूसरी किस्म की किताबें जो हिंदू मजहब में, वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है, लेकिन इंसानों ने लिखी है। और
स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए इस जमीन पे, इनफरादी तौर पे, माशरी तौर पे और आलमी तौर पे। कई किस्म की स्मृति है। मिसाल के तौर पे पुराणास है, इतिहास है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहले किस्म की किताब जो हिंदू मजहब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। वेद आता है संस्कृत लफ्ज विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद चार किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी तीन साइंस की किताबें या तीन इल्म की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफाइसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है, लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराणास है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने, और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है
भगवान खुदा ज़मीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर, और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का रूप लेके इस जमीन पे आने की जरूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ चीज, ईश्वर की कुछ चीज, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि 2 श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस जमीन पे और जब भी नेकी घटती है तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस जमीन पर। इसमें हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं। हूबहू इस्लाम जिस चीज को मानता है वो इसको मानता है। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए
एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को ख़त्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। ये शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो आखिर तक देख ली होगी और आप लोगों को सीखने के लिए कुछ मिला होगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दुख और अफसोस से भरी हुई वीडियो थी। हर बंदा आजकल उठता है और ये दावा करता है कि मैं नबी हूँ, हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत के दरवाजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुए हैं। दोस्तों, ये जो है ये फितने होते हैं, ये दजाली फितने होते हैं। इसी तरह के लोग आएंगे और झूठे नबी होने का दावा करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे हालात में हमें कुरान पाक और हदीस शरीफ पे जो है अमल करना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो आखिर तक देख ली होगी और आप लोगों को सब कुछ सही समझ आया होगा। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।